ईरान के साथ जौहरी मुआहदा मेरी पहली तरजीह है। तेहरान को एटमी ताकत बनने से हर हाल में रोकूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक ऐलान। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा कि ईरान खुद भी डील करना चाहता है, लेकिन मैंने अभी तक एटमी हथियारों से दस्तबरदारी के अल्फाज उनके मुंह से नहीं सुने। ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो हमारे अड्डों और यूरोप तक पहुंच सकते हैं। सदर ट्रंप के मुताबिक हालिया हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान 32,000 अफराद मारे गए। We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. They've killed at least, it looks like, 32,000 protesters, 32,000 protesters in their own country. अमेरिकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकने का जिक्र छेड़ दिया। खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान का भी हवाला दिया। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने जंग रुकवाकर 3.5 करोड़ लोगों की जानें बचाई हैं। Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कामयाबियां गिनवाई। कहा, अमरीका में एक साल में $18 ट्रिलियन की सरमायाकारी हुई। अमरीकी सरहदें महफूज तरीन हैं। महंगाई की सतह रिकॉर्ड सतह पर नीचे आई है। वेनेजुएला से 8 करोड़ बैरल तेल अमरीका लाए। उन्होंने टैरिफ से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मायूस कुन करार दिया। कांग्रेस से मुशावरत के बगैर टैरिफ बरकरार रखने का ऐलान भी किया। One of the primary reasons for our country's stunning economic turnaround were tariffs. I used these tariffs, took in hundreds of billions of dollars to make great deals for our country. Today our border is secure, our spirit is restored, inflation is plummeting, incomes are rising fast, the roaring economy is roaring like never before, and our enemies are scared, our military and police are stacked, and America is respected again, perhaps like never before. And then just 4 days ago, an unfortunate ruling from the United States Supreme Court. Despite the disappointing ruling, these powerful, country-saving will remain in place under fully approved and tested alternative legal statutes. Congressional action will not be necessary. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के लिए स्टेज पर आए तो डेमोक्रेट्स अपनी नशिस्तों पर बैठे रहे, जिस पर सदर ट्रंप गुस्सा हो गए, उन्हें पागल करार दे दिया। इसी दौरान इल्हान उमर और रशीदा तुलैब ने एहतजाज भी किया। सदर ट्रंप और इल्हान उमर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। अमेरिकी सदर ने न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की तारीफ की और कहा कि वो कम्युनिस्ट हैं लेकिन अच्छे आदमी हैं, उनसे अक्सर बात होती रहती है। सियाह फार्म कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ऑलग्रीन के एहतजाज करने पर उन्हें हॉल से निकाल दिया गया। Look, nobody stands up. These people are crazy. I'm telling you, they're crazy. That protect the criminals and enact serious penalties for public officials who block the removal of criminal aliens. In many cases, drug lords, murderers all over our country. They're blocking the removal of these people out of our country, and you should be ashamed of yourself. And even the new communist mayor of New York City, I think he's a nice guy, actually. Speak to him a lot. बानी पीटीआई को इलाज के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल करने और जाती मौलजीन को रसाई देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त लतीफ खोसा और दीगर वकला की जानिब से दायर की गई है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा कि दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? देखिए, पहली बाज़ाब्ता अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त है जो दायर की गई है सरदार लतीफ खोसा की जानिब से, और सुप्रीम कोर्ट में दायर इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बानी पीटीआई का हक है कि उन्हें अपनी मर्जी का इलाज फराहम किया जाए, लिहाजा उनको अदालत ये अहकाम जारी करे कि इस्लामाबाद में एक निजी अस्पताल में मुंतकिल किया जाए और वहाँ पर जाती मुआलजीन और फैमिली की मौजूदगी में उनका इलाज यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि बानी पीटीआई की अब तक की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी फैमिली को फराहम की जाए और वकला को बानी पीटीआई तक रसाई भी दी जाए ताकि तमाम मुकदमात पर उनसे ज़्यादा तरह हिदायत भी दी जा सके।
अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से खुली अदालत में रोस्ट्रम पर जाकर बात करने की कोशिश। चीफ जस्टिस सुनी अनसुनी करते हुए अपने चैम्बर में चले गए। सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई के केसेस की समाअत ना होने के हवाले से बात करना चाह रहे थे। किसी से कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। मैं इतना फारग नहीं कि सिक्योरिटी वापस लेता रहूं। हमारी सारी तवज्जो बानी की रिहाई पर है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई नॉन इशू को इशू बनाकर खबरों में रहना चाहता है तो इस पर कुछ नहीं कह सकता। ये झूठ है, मैंने कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली और ना ही जो है मैं इस चीज़ के लिए फारिग हूँ। हमारे लिए सबसे पहले इमरान खान साहब है, उनकी सेहत है और हकीकी आज़ादी की ये तहरीक है। बाकी चीज़ें जो हैं वो बाद में आती हैं और अगर कोई ख्वामखा इस चीज़ को इशू बनाकर जो है न्यूज़ में आना चाह रहे तो इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। बहरहाल जो है किसी से कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई और मेरे ख्याल में इस वक्त जो है हमारा सारा फोकस इमरान खान साहब की सेहत और उनकी रिहाई पर होना चाहिए और बाकी किसी चीज़ पर। साबिक़ वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस लेने का मामला। DI खान पुलिस ने अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों की फहरिस्त जारी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे शहाब रहमान हमारे साथ मौजूद है। जी शहाब, बताइए क्या तफसीलात जारी की गई हैं? गुज़िश्ता शब अली अमीन गंडापुर ने इस हवाले से तस्दीक की थी कि उनसे जिसके सिक्योरिटी एहलकार है और जैमर की गाड़ी है वो उससे ली गई है वापस, जिस पर सुबह DI खान पुलिस ने एक फहरिस्त जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि अली अमीन गंडापुर के पास जो है सिक्योरिटी पर तकरीबन 77 एहलकार जो है वो तैनात है, जिसमें 58 जो है वो सिक्योरिटी विंग, 12 FRP के एहलकार और 7 जो है वो रेगुलर एहलकार जो है वो इस वक्त तैनात है। इस हवाले से जो है हमारे ज़राए का ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो वज़ीर आला हाउस की जो सिक्योरिटी थी वो उनसे वापस ली गई है और उसमें एक जमर गाड़ी भी मौजूद थी। इस हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब का ये भी बताना है कि अगर मुझे अब वज़ीर आला ने ये सिक्योरिटी वापस देने का भी कहा तो मैं इनसे ये सिक्योरिटी जो है वो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कराची में तीसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात जारी हैं। स्टेट बैंक हुकाम ने IMF के साथ तकनीकी डाटा शेयर कर दिया है। वफ़द को एक्सचेंज रेट से मुताल्लिक़ लचकदार पॉलिसी पर ब्रीफिंग। प्रोग्राम के तहत मोहतात मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने की यकीन दहानी करा दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं। इस्लामाबाद से समग्र नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ मौजूद है। जी शकील साहब, बताइए क्या तफसीलात है आपके पास इन मुज़ाकरात के हवाले से? देखिए फवाद, पाकिस्तान और IMF के दरमियान कराची में मुज़ाकरात ये शुरू हुए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस का विज़िट किया है IMF के मिशन ने और टेक्निकल जो डाटा है वो शेयर किया गया है IMF के साथ। ख़ुसूसन जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो परफॉर्मेंस है, जो अहदाफ हैं, उसमें पेशरफ से आगाह किया गया है। जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो ये बताया गया है कि 16 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं और जून तक ये 18 अरब डॉलर से ऊपर जा सकते हैं। इसी तरह जो रेमिटेंसेज हैं, तरसीलात ज़र, उसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन जो मॉनिटरी है वो मुहतात रखने का फ़ैसला किया गया और IMF को ये बताया गया है कि महंगाई के पेश नज़र ये फ़ैसला किया गया है और 10.5% पर यह बरकरार है। मार्च में मज़ीद ज़्यादा लिया जाएगा और एक्सचेंज रेट जो है वो लचकदार रखा जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरवेंशन जारी रखेगा ताकि पाकिस्तान का जो रुपया है वो मुस्तहकम रहे, उसकी कदर मुस्तहकम रहे। इसके अलावा महंगाई के बारे में बताया गया है कि 5.6% दिसंबर में रही है और 5 से 7% रहने का इम्कान है आने वाले महीनों में, जो कि हदफ के बराबर होगी। और साथ ये भी कहा गया है कि इस माली साल 3.75% से लेके 4.75% तक मुआशी शरह नमू रहने का इम्कान है। हुकूमत का हदफ 4.2% है, लेकिन लार्ज स्केल मैनुफैक्चरिंग और जो ज़रई शुबा है उसकी परफॉर्मेंस तवक्कुआ से बेहतर रही है, तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी बहाली का अमल है वो जारी है। और IMF के साथ मुज़ाकरात पीर से इस्लामाबाद में होंगे और बजट से पहले पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की किस्त मिलेगी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी। बहुत शुक्रिया आपका शकील अहमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी और कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से अलग अलग मुलाकातें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। दिफा, सरमायाकारी और तिजारत समेत तमाम शोबों में दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा किया गया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। उधर भक्कर दाजल पुलिस चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है।
आईजी पंजाब, एडिशनल आईजी सीटीडी, आरपीओ सरगोदा ने शिरकत की है। दाजल चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 1 जख्मी हो गए थे। तफसील जान लेते हैं नुमाइंदा सभा यूनुस ओलक से। जी यूनुस, बताइए कौन कौन शरीक हुआ नमाज जनाजा में? नमाज जनाजा पुलिस लाइन बखर में अदा की गई। आईजी पंजाब अब्दुल करीम, एडिशनल आईजी सीटीडी वसीम अहमद सियाल, आरपीओ सरगोदा डॉक्टर शहजाद अफजल आसिफ, स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर राशिद सदीक खोखर, डिप्टी कमिश्नर बखर एहसान अली जमाली, डिप्टी डीपीओ बखर शहजाद रफीक अमान और समेत पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों, जिले व पुलिस के आला अफसरान, पुलिस के एहलकारान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं मुस्तकबिल में दरियाए चिनाब से सैलाब की तबाहकारियां बचाने का मिशन। वापटा ने चिनाब पर 4 डैम बनाने का फैसला कर लिया है। तकरीबन 300 अरब रुपए मालियत का मंसूबा 4 साल में मुकम्मल किया जाएगा। मजीद जानते हैं जहीर अली से। जी जहीर, आगाह कीजिएगा। देखें, जो दस्तावेज़ हमें मिली है वापडा की, उसके मुताबिक भारत की जानिब से जो अचानक पानी छोड़ दिया जाता था दरिया चिनाब में, उससे सैलाबी सूरत हाल पैदा होती थी जिससे नुकसान होता था। और जब खुश्क साली होती थी तो उस वक्त पानी को रोक के जो है फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता था। तो अब ये फैसला किया गया है कि दरिया चिनाब का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से लेके आखिर तक 4 डैम बनाए जाएंगे और उन डैम से मजमूई तौर पर 330 मेगावाट बिजली पाकिस्तान को हासिल होगी और 45 लाख एकड़ जो पानी है उसमें ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश होगी, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जो ज़ख़ीरा किया हुआ पानी होगा फसलों के इस्तेमाल में आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बचेगा और मजमूई तौर पर जो इसकी लागत है वो 298 बिलियन है और इब्तदाई तौर पर ये